Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture BEE Unit 5, lecture number 3, I am going to talk about star delta transformation in DC circuit. Okay, star delta and delta star transformation and some numerical based on that. After studying this presentation, you will be in position to understand the concept of delta to star transformation, why it is required. Okay. Now, before starting our delta star transformation, the derivation of the formula, I am interested to discuss why the transformation is required. What is the necessity of it? Okay, so I am going to discuss case number 1, case number 2, case number 3, but we will discuss one more case 3, right? But before that, first of all, I am going to discuss the case number 1. Case number 1, these are the resistances are given. This is the diagram I have given. This diagram I have given. Find the equivalent resistance between A and B. R equivalent निकालना है, right? So R equivalent is what? R equivalent मतलब R resistance between A and B. I want to find it. Now just see here. In this diagram, I have given R1, R2, R3, R4. Now just see here, R1 and R2 all are in series. These two are in series. Yes, whatever the current is coming, same current is coming here. So these two are in series. Similarly, R3 and R4. These two are in series. So R1 and R2 in series, R1 plus R2, R3 plus R4 in series, R3 plus R4, right? Now, these two combinations, series combination, this and this, कहाँ connected at point A? A है, तो this is also A. This is B, so this is also B. So these two combinations are connected between A and B, between A and between B. So can I say if these two resistances, these two combinations, this and this, connected to the same point A and B, so they are this and this are in parallel, right? So R equivalent क्या आएगा? R1 plus R2 एक combination है, दूसरा क्या है? R3 plus R4 another combination, both are in parallel. So this into this, clear? Upon this plus this, R1 plus R2 plus R3 plus R4. So in this way you can find the equivalent resistance between A and B. Right? Case number 2 I am going to talk. तो ये आंसर ये दिया है. Okay? Case number 2. Case number 2 में हमने ये सेम डायग्राम दिया था R1 R this one, clear? But यहाँ पर C और D ऐसा दिया है. This is the circuit I have given. So how to do it? What is the combination? Now, if you are not getting, first draw the simplified diagram. Simplified diagram. How to draw the simplified diagram? पहले बताओ equivalent resistance किसके बीच में निकालना है? A और B के बीच में. So take A here, B here. Clear? और पहला काम क्या करना है? Equivalent resistance between A and B. So take A, B और ये C और D सब रिमार्क करना है. चारों पॉइंट. जब ये बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D? जीरो. शॉर्ट है ना, मतलब जीरो. जीरो का मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जीरो. वोल्टेज ड्रॉप जीरो मतलब पोटेंशियल ऑफ C एंड D विल बी सेम और डिफरेंट. अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो ड्रॉप जीरो होगा. ड्रॉप जीरो है तो वोल्टेज ऑफ C एंड वोल्टेज ऑफ D विल बी सेम. और अगर वोल्टेज सेम है तो कैन बी ट्रीट C एंड D एज सेम पॉइंट. Yes, C or D same point. चारों पॉइंट आ गए A, B, C, D, right? Just tell me arc 1 कहाँ है? Between A and C के बीच में है. So A ये है और C ये है. Clear? तो A देखो मैं ऐसा लिखता हूँ A और A C, A B, sorry A B, okay? और C और D एक ही पॉइंट है, C और D.
Okay. COD. Now join A. R1 is between A and C. A and C. R1. R2, R3 between A and D. A and D same point R3. Similarly R2 कहाँ कनेक्ट है? C और B के बीच में. C and B के बीच में कितना है? R2. और ये R4 कहाँ कनेक्ट है? D और B के बीच में. ये D है, ये B है. R4. So I have drawn the simplified diagram. Now just tell me this R1 and R3 connected to the same point A and C. So these two are in parallel. Clear? कितना आएगा? R1 R3 upon R1 plus R3. Similarly R2 and R4 are in parallel, connected between C and B. So ये आएगा R2 R4 upon R2 plus R4, and both are काय में? सीरीज में है ना, between B and A. दोनों सीरीज में है, तो क्या आएगा? R1 R3 upon R1 plus R3, ये प्लस ये, R2 R4 upon R2 plus R4. So in this way you will get the equivalent resistance between A and B. Clear? Now the case 3 is important. That is the necessity of star delta transformation. You will understand from there, right? मैं रब करता हूँ. जस्ट केस 3 के लिए कारण ही मैंने ड्रा किया था आपको समझ आने के लिए, बस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. केस 3 है. केस 3. ओके. सो ये केस 3 है. जस्ट सी हियर, दिस इज द ओरिजिनल फिगर आई हैव गिवन. ये वाला, ये डायग्राम जो दिया है ना, ये दिया है. बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और सी और डी के पहले ओपन था पहले केस में, दूसरे केस में शॉर्ट है, तीसरे केस में ए R5. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट आर द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. यू कैन से, कुछ लोग बोलेंगे सर R1 और R3 इन सीरीज. अगर यहां से करंट आ रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सो दे आर नॉट इन सीरीज. ओके. फिर आप बोलेंगे सर सीरीज नहीं तो पैरेलल है R1 R3. एक एंड R1 और R3 का ये यहाँ कनेक्ट है. What about the other end of R1? ये है, और अदर एंड ऑफ R3 ये है, और COD सेम पॉइंट है कि डिफरेंट है? डिफरेंट, बीच में रेजिस्टेंस आ गया. क्लियर? सिमिलरली यू कैन सी एनी कॉम्बिनेशन, नो वन इन सीरीज, नो वन इन पैरेलल. कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, पैरेलल में नहीं है. एक्चुअली यू विल सी R1 R3 और R5, it is forming a closed loop called as delta. It is called as closed loop called as delta. Clear? Similarly R2 R4 and R5, it is forming a closed loop called as delta. Clear? How many delta we have? 2? No, any one, either this or this. Don't say 2. क्यों? R5 दोनों में कॉमन है, तो या तो ये डेल्टा है R1 R3 R5, या फिर ये डेल्टा है R2 R4 R5. डोंट से कि दोनों डेल्टा, दो डेल्टा है, एक कोई एक. क्लियर? सो एक काम करता हूं, मैं ये डेल्टा लेता हूं R1 R5 R3 डेल्टा. मैं यहां इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा. स्टार में कन्वर्ट करूंगा मतलब ये डेल्टा है ना, ये, इसको स्टार में कन्वर्ट करना मतलब ऐसा. क्लियर? सो आई विल गेट दीज ब्रांचेज, दिस ये आ जाएगा. क्लियर? इसका मतलब इस 3 को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा को स्टार में, तो यू विल गेट दिस रेजिस्टेंस. लेट अस कनेक्टेड टू ए, लेट अस से RA. दिस रेजिस्टेंस यू विल गेट कनेक्टेड टू C, लेट अस से RC, C point. This resistance connected to D, let us say RD, और ये न्यूट्रल पॉइंट है N, ये न्यूट्रल पॉइंट है, so that is a न्यूट्रल पॉइंट N, right? तो ये 3 नए रेजिस्टेंस आ गए. वैल्यू विल डिस्कस लेटर ऑन. इज इट क्लियर? तो आई हैव कन्वर्टेड दिस डेल्टा इनटू स्टार, Y शेप स्टार.
और ये R2 और R4 विल बी एज इट इज, क्योंकि ये डेल्टा लिया था हमें, इसको एज इट इज रहेंगे। तो R2 कनेक्टेड टू B, R4 connected to D to B, like that. Now how will you get it? अभी इसके आगे simplify, these two are what? Series, RC and R2 in series, प्लस हो जाएगा। Similarly RD और R4 काय में है? They are also in series, RD plus R4 in series. क्लियर? कहाँ कनेक्ट है ये दोनों कॉम्बिनेशन? बिटवीन N and B, between N and B, between N and B. Now these two combinations are in parallel. क्लियर ना? दिस कॉम्बिनेशन तो क्या आएगा? RC प्लस R2 इंटू RD प्लस R4 इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। अभी इनका ये हो गया, प्लस RA काय में है? सीरीज में इसके, प्लस RA। Clear na? So this is the answer. This is the way of solving the problem, and you are getting from here. This is the answer. यही answer है. Clear? So is it clear why the delta to star transformation is required? Without converting this delta into star, you can't solve the problem. Sometimes कोई भी resistance series में नहीं होगा, कोई भी parallel में नहीं होगा. We have to convert delta into star or star into delta. Then and then only you can solve the problem. Otherwise it is not possible. Clear? So that is the concept I had taken. In case लेके मैंने बता दिया है आपको कि how to do it. Clear? Okay. Now I am discussing how to transform delta into star. अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ डेल्टा इंटू स्टार ये वैल्यू आएगी RA, RC, RD, लेकिन ये RA, RC, RD की वैल्यू क्या है? कौन सा फार्मूला से आया है? आई एम गोइंग टू ट्राई दैट फार्मूला. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट डेल्टा इंटू स्टार. Now you can say I have 3 points A, B, C, right? और रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है RAB, RAC, RBC for connected between A and B, ABC. It is forming a delta, closed loop called as delta. ऐसा बन रहा है ना? ऐसा इसको बोलते हैं RAB, RBC और RAC are forming a delta, right? इसका नाम AB कैसे पड़ा? RAB, क्योंकि इट इज कनेक्ट बिटवीन A and B, सो RAB. ये कहाँ कनेक्ट है? ये रेजिस्टेंस बिटवीन B and C, सो BC, RBC. ये कहाँ कनेक्ट है? A और C के बीच में कनेक्ट है, तो RAC. तो you can say कि नाम ABC, RAB, RBC, RAC. आप चाहो तो 1 2 3 R12 R23 R13 लाइक दैट. क्लियर? और ये स्टार है A, B और C के बीच में, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये वाई शेप मतलब स्टार. दिस इज कनेक्टेड टू A, B, RB. दिस इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल एंड C, RC. दिस इज कनेक्टेड टू A एंड न्यूट्रल, RA. आप चाहो तो उसको RAN, RBN, RCN लिखो, नहीं तो RA, RB, RC. इट इज फॉर्मिंग ए स्टार. क्लियर हो गया? सो RAB, RBC, RAC क्या बना रहा है? डेल्टा. RA, RB, RC क्या बना रहा है? इक्विवेलेंट स्टार. इक्विवेलेंट स्टार का मतलब है क्या? यहाँ A और B के बीच में आपका जो वैल्यू आया, सपोज करो 10 ओम आया, मल्टीमीटर लगा के आप यू कैन मेजर 10 ओम, तो यहाँ भी 10 ओम आएगा. यहाँ B और C के बीच में मान लो 12 ओम आया, तो यहाँ पर भी 12 ओम है सपोज. और बिटवीन A और C मल्टीमीटर लगाया आपका 13 ओम आया, तो यहाँ भी A और C के बीच में 13 ओम है. सो आई कैन से दिस टू आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. हमने क्या किया है? अंदर का अरेंजमेंट चेंज करना है. डेल्टा टू स्टार वैल्यू बदल जाएंगी, बट इक्विवेलेंट वैल्यू शुड नॉट बी चेंज. इसको बोलते हैं दे आर डेल्टा एंड स्टार आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इज इट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? राइट. Now just tell me what is the resistance between A and B in delta. Forget this star. A and B in delta. Yes. Between A and B in delta क्या होगा?
ए और बी के बीच में अगर निकालना है तो मैं फिर से बनाता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार बना लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक शीट ब्लैंक शीट लेता हूँ और आई एम गोइंग टू ड्रा इट, जस्ट रब इट फर्स्ट। ये ऑलरेडी पहले ही से किया हुआ है। You will clear, this will give you conceptual idea. I'm just saying here, मैं एक डेल्टा बनाता हूँ। This three resistance connect between A, B, C. So this is R, A, B. This is between R, A to C, and this is C. This is C, and this is B. So this is B. So R, B, C. So RAB, RBC, RAC are forming delta. Now एक और ये यहाँ पर जो आएगा ऐसा ये न्यूट्रल पॉइंट है ये, राइट। so this is RA, A, B, C. This is RA, this is RB, and this is RC, forming a star, equivalent star, right? So equivalent resistance between A and B. In delta क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो आर ए बी के बीच में एक ब्रांच ये है और सी पॉइंट फ्लोटिंग है। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। आपने मल्टीमीटर ए और बी के बीच में लगाया। सी पॉइंट तो ओपन है तो ये कट हो गया। चाहो तो आप इसको रब कर दो, राइट। अभी क्या होगा अगर ये कट कर दिया आपने, सपोज करो ऐसा कहीं कनेक्ट नहीं है ये, सपोज क्या होगा? whatever the current will come here, सेम करंट यहां आएगा कि नहीं? क्योंकि यहां तो ओपन है, फ्लोटिंग है तो मान लो कनेक्ट भी है आपका, सपोज करो आपने कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन फ्लोटिंग है, कहीं कनेक्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा करंट ये आएगा। सेम करंट यहां आ रहा है, इसका मतलब दिस टू आर इन काय में, सीरीज में, तो क्या आएगा? आर बी सी प्लस आर ए सी, दोनों सीरीज में हो गए ना ये, क्योंकि ये फ्लोटिंग है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ कनेक्ट बिटवीन ए और बी के बीच में, और आर ए और बी के बीच में आर ए भी है, तो दोनों काय में आएंगे? ये कॉम्बिनेशन और ये काय में आएगा? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? दिस आर ए बी इंटू दिस अपॉन तीनों का सम। Clear? That is the equivalent resistance between A and B. Now, what is the equivalent resistance between A and B in star combination? Equivalent resistance between A and B in star, यहाँ पर आते हैं। A और B के बीच में निकालना है, C फ्लोटिंग है, ये कहीं ओपन है, सपोज करो ओपन है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है आरसी कहीं कनेक्ट है कि नहीं? नहीं है, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? वट एवर द करंट विल कम हियर, पूरा का पूरा करंट यहां आएगा कि नहीं? इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा? आर ए प्लस आर बी। क्यों? सी पॉइंट फ्लोटिंग है, कहीं कनेक्ट नहीं, तो यहाँ करंट आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा यहाँ, तो इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, आर ए प्लस आर बी। क्लियर? सो कैन आई से इक्वेशन, ये आर ए प्लस आर बी इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं क्या ऐसा?
इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते कि नहीं? यस वी कैन। क्यों? पहले ही मैंने बोल दिया है दिस डेल्टा एंड दिस स्टार बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हियर एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टार विल बी सेम। सो वही तो किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब स्टार में ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डेल्टा में ये दोनों इक्वल करिए। Similarly, what is the equivalent resistance between B and C? B and C बताओ। B and C ये अभी फ्लोटिंग नहीं है, अभी C फ्लोटिंग नहीं है। अब फ्लोटिंग क्या हो गया? A फ्लोटिंग हो गया। बिटवीन B and C क्या आएगा? यहाँ से करंट जाएगा तो ऐसा ऐसा जाएगा ना, क्योंकि ये तो फ्लोटिंग है। अब तो बिटवीन B and C क्या आएगा? RB प्लस RC इक्वल टू ए स्टार में हो गया। डेल्टा में बताओ B और C के बीच में, B और C के बीच में ये फ्लोटिंग है, अब ये नहीं है फ्लोटिंग। अभी ये फ्लोटिंग है, ठीक है, और ये फ्लोटिंग नहीं है। कनेक्ट कर देता हूं मैं। अब बिटवीन बी एंड सी, राइट? सो बी और सी के बीच में आरबीसी एक ब्रांच हो गई। ये फ्लोटिंग होने से दिस टू आर इन, ये दोनों काय में आ जाएंगे? सीरीज में आएंगे कि नहीं? क्यों? अगर ये पॉइंट फ्लोटिंग है तो मतलब व्हाट एवर द करंट इज कमिंग, सेम करंट यहाँ आएगा। सो एक ब्रांच क्या आएगा? आर बी सी प्लस आर ए बी, सॉरी आर ए बी प्लस आर ए सी सीरीज में। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल विद आरबीसी। क्यों? ये आरबीसी के बीच में आरबीसी है और ये दोनों सेम पॉइंट पे वीओसी पे हैं, तो आर बी सी अपान तीनों का सम। Similarly, you will get RA plus RC अपॉन RAC, वन ब्रांच हो जाएगी, RAB इंटू RBC अपॉन तीनों का सम आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। So you will get these three equations, right? Now just tell me, I have to convert this delta into star, right? डेल्टा इंटू स्टार मतलब हमको क्या मालूम है? RAB, RBC, RAC मालूम है, हमको ये निकालना है RA। How will you find RA from here? Just check here. How will you find RA? अगर हम 1 माइनस 2 कर दें, वन माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? RA माइनस RC। क्यों? RA माइनस RC, RB कट जाएगा और ये इक्वल टू, यहां भी तो सब्ट्रैक्ट होगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, RAB प्लस RBC प्लस RAC सेम आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? RAB RBC प्लस RAB RAC माइनस RAB RBC कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस में रहेगा RAB RBC और RAB RBC माइनस हो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? RAB RAC माइनस RBC RAC। RAC C है। ओके, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 क्या करने चाहिए? RC नहीं चाहिए तो क्या? ऐड 3 एंड 4। 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2RA हो जाएगा ना। यहाँ डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऐड करेंगे तो RAB RAC दोनों प्लस हैं तो 2RA 2RAB RAC आ जाएगा और RAC RBC प्लस और ये RBC RAC माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, RA आ गया। RA इक्वल टू व्हाट? RAB RAC, ARA मतलब ARA, ये वैल्यू ARA, ये क्या होगा? RAB इंटू RAC। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 पॉइंट
two branches, two resistance connected to the point A upon तीनों का sum. Yes, that is a formula. Clear na? So in this way you can get. Similarly RB you can say, similarly REC you can find, right? So I'm just coming back. ये किया है मैंने, ये किया है equivalent resistance between A and B in delta, between A and B in delta. तो RAB एक ब्रांच है और ये दोनों सीरीज में है. क्यों? ये पॉइंट फ्लोटिंग है अपान तीनों का सम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टार आर ए प्लस आर बी. क्लियर? और सी पॉइंट तो है नहीं है, फिर दोनों को इक्वल किया होगा. क्लियर? और दोनों को इक्वल करने के बाद ये आया है. सिमिलरली ये देन 3 माइनस 2 ये प्लस किया तो यू विल गेट आर ए आर बी आर सी. क्लियर? ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए? आर ए इक्वल टू क्या है? ये वहीं से ये क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कनेक्टेड टू पॉइंट ए अपान तीनों का सम. आर बी क्या होगा? ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर ए बी इंटू आर बी सी. इन दोनों कनेक्टेड टू पॉइंट बी है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपान तीनों का सम. आर सी ये कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर ए सी आर बी सी upon तीनों का sum. That is the formula. This is the way of converting delta into star. Clear? This derivation is very very important. Examiner में ask. Next, star to delta. प्लीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी डोंट कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा. अगर आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब यू आर मेकिंग प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट. कभी भी जनरली हम क्या करेंगे? डेल्टा टू स्टार ही यूज करना है, स्टार टू डेल्टा कभी नहीं करना. एक आध प्रॉब्लम में कहीं होगा तो आई विल टेल यू. ओके, स्टार टू डेल्टा. सो आपको ये मालूम है आर ए आर बी आर सी के फार्मूला हमने अभी ड्राइव किए थे, वो मालूम है. दिस इज आर ए क्या था? आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, लाइक दैट. सो आई गॉट इट, वी नो इट. क्लियर? आई एम डूइंग ए इंटू बी, इक्वेशन ए इंटू बी प्लस इक्वेशन बी इंटू इक्वेशन सी प्लस इक्वेशन सी इंटू इक्वेशन ए. क्लियर? सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस साइड आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी. आई गॉट दिस साइड. इधर इस साइड क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तीनों में सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा. ओके. अगर आप a इंटू बी करेंगे तो आर ए बी आर ए सी आर बी सी है, सॉरी आर ए बी आर ए सी आर बी सी, समथिंग इज रॉन्ग हियर, सॉरी, जस्ट चेक इट. आर ए बी आर ए सी करेक्ट, आर बी सी आर ए सी है, सॉरी this is AC, please be corrected. okay, और sorry RBC और RAB है, AC RAC RBC. C है तो CC आने चाहिए, B है तो BB आने चाहिए. क्लियर? A है तो AA आने चाहिए, 2 बार आने चाहिए. ठीक है, that is something wrong. okay, so डिनोमिनेटर में तो तीनों का सम हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, राइट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आर ए बी आर ए सी आर बी सी तो आएगा, बट आर ए बी 2 बार आ रहा है तो आर ए बी का स्क्वायर. क्लियर? जब दूसरा करेंगे बी इंटू सी तो आर ए बी आर बी सी आर ए सी तो आएगा ही, बट बी सी आपका 2 बार आ रहा है, बी सी स्क्वायर, ऐसे ही ए सी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, एक क्वेश्चन नंबर डी. एक काम करता हूं मैं, यहां पर आर ए बी आर बी सी आर ए सी कॉमन ले लिया. कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? आर ए बी. यहाँ कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? आर बी सी. यहाँ कॉमन लेने के बाद आर ए सी बचेगा और ए स्क्वायर है तो ये टर्म और ये टर्म स्क्वायर था, एक बार कैंसिल हो जाएगी. अब दिस इज इक्वेशन आर ए बी आर बी सी आर ए सी अपॉन दिस. इक्वेशन नंबर डी आ गया. नाउ आई हैव 4 इक्वेशन ए बी C D. I want to find RAB because I want to convert star into delta. How will you get RAB? D upon C कर देते हैं. D upon C.
डी अपॉन सी किया तो यहाँ पर क्या है, आर ए बी आर बी सी आर ए सी अपॉन यहाँ आर ए सी आर बी सी आर ए बी नहीं है, तो एक डी अपॉन सी करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली आर ए बी बचेगा, आर ए बी। इस साइड भी डी अपॉन सी करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन सी मतलब ये आर सी से डिवाइड होगा तो आर सी कैंसिल, आर ए बचेगा इधर, यहाँ आर सी कैंसिल तो आर बी बचेगा, यहाँ आर ए प्लस आर बी अपॉन आर सी, सो यू आई एम गेटिंग आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी अपॉन सी आर सी। सो व्हाट इज हाउ टू आई नो द स्टार, ये आर बी आर सी मालूम हमको, ये निकालना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आर ए बी कैसे निकालेंगे, आर ए बी इक्वल टू क्या होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी अपॉन थर्ड ब्रांच आर सी। सिमिलरली आरबीसी ऑन द सेम लाइन, आरबीसी कैसे निकालेंगे, आरबीसी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आरबीसी, आरबीसी कैसे निकालेंगे, आरबीसी इक्वल टू क्या होगा, आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी अपॉन थर्ड ब्रांच आर ए, क्लियर ना, लाइक दैट। सिमिलरली आर ए सी कैसे निकालेंगे, आर ए सी कैसे निकालेंगे, आर ए सी आर ए प्लस आर सी प्लस आर सी अपॉन थर्ड ब्रांच आर बी, क्लियर। So that is the way of converting star to delta, but please be careful about it. This is only important for theory, not for numerical. Don't use for solving the numerical this formula, right? I'm rubbing it, I'm solving some problems based on that. Okay, I'm going to talk about some numerical. Suppose I have given find the equivalent resistance between A and B. Okay, so equivalent resistance निकालना है तो क्या करेंगे, between A and B. So this is the 2, 4, 6, 10, 8 ohm resistances are given. I'm not getting it. तो पहला काम क्या करूंगा, मैं सबको एक नाम दे दूंगा जंक्शन को, A, this is A, this is B. First we will remark the A and B because we have to find the resistance between these two terminals. Then give the name to each junction. This is C, this is D. Name the name. So इसके अलावा कोई जंक्शन है तो बोलो, this A है तो ये भी A है, ये C है तो B है तो ये भी B है, राइट, और C और D, इसके अलावा कोई जंक्शन है नहीं है। नाउ फर्स्ट काम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो A और B दोनों, A और B को आधा दूसरे दो एंड पे ले लो आप, A यहाँ ले लिया और B यहाँ ले लिया, ठीक है। C और D OB जंक्शन है तो C और D भी रिमार्क करना है यहाँ। ट्राई टू टेक C and D in such a way that it should form a delta। ऐसा कुछ करो कि, क्योंकि आपको ये दिख रहा है A to C रेजिस्टेंस है, A to B है, A to D है, C to B है, एवरीवेयर रेजिस्टेंस है, तो ऐसा लो C और D पॉइंट को कि इट शुड फॉर्म ए डेल्टा। तो आई एम टेकिंग C and D हियर, C हियर और D यहाँ, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस ज्वाइन करना है। पहले 2 ओम कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन A एंड C, सो दिस इज 2 ओम बिटवीन A एंड C। 8 ओम कहाँ है, 8 ओम बिटवीन A एंड D, बिटवीन A एंड D कितना है, 8 ओम, राइट। नाउ 4 ओम कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन 4 ओम C एंड D के बीच में, दिस इज C एंड D, 4 ओम। 6 ओम कहाँ है, बिटवीन D एंड B एंड D के बीच में कितना है, 6 ओम। एंड बचा क्या, 10 ओम कहाँ है, C और B के बीच में, C और B के बीच में कितना है 10 ओम। ओके, सो हैड सिंपली, अभी ये डायग्राम बहुत सिंपल दिख रहा है कंपेयर टू दिस। तो पहला काम क्या करना है आपको, ड्रा द सिंप्लीफाइड डायग्राम, ड्रा सिंप्लीफाइड डायग्राम।
कैसे ड्रा करना है, पहले ए और बी ले लो और जितने भी नोड हैं सबको रिमार्क कर दो और ट्राई टू मेक ए डेल्टा, राइट। नाउ you can see here, you can see here, you can see here this 248 क्या बना रहा है, डेल्टा बना रहा है। तो मैं आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टार, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। ये 284 है ना, इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट लेके ये इसको ये पॉइंट निकाल देते हैं, राइट। तो अभी डायग्राम कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम n a2 n n2 c n2 d, क्लियर ना। ये आपके नए रेजिस्टेंस आ गया है, राइट। नाउ ये तीन रेजिस्टेंस को दैट वाज फॉर्मिंग ए डेल्टा आई हैव कन्वर्टेड इनटू स्टार। ये 4 6 एंड 10 विल बी एज इट इज, ये 10 और ये 6 विल बी एज इट इज कनेक्टेड टू बी। ये 10 है और ये 6, आई हैव नॉट कन्वर्टेड, आई हैव टेकन दिस डेल्टा इनटू स्टार। So you will get new diagram like that, right? Now what is this value? ये वैल्यू क्या होगी आपको मालूम है, मैंने डेल्टा टू स्टार बताया था। इससे ये दो रेजिस्टेंस डेल्टा की वैल्यू थी, दिस इंटू दिस कितना आएगा, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 प्लस 4, क्लियर ना। ये फार्मूला बताया था आपको, अगर लास्ट स्लाइड में ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस ये पॉइंट से कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, 2 and 8, 2 into 8 आर ए सी इंटू आर ए डी अपॉन आर ए सी प्लस आर ए डी प्लस आर बी डी सी डी, सॉरी, इन तीनों का सम। सो 16 अपॉन 14 कितना आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 14, आई एम गेटिंग 1.14, दिस इज 1.14, this is 1.14. I told you already, I don't want any calculation, just you have to write value here. ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू 2 into 4, ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू दिस वैल्यू 2, ये दो रेजिस्टेंस है ना कनेक्टेड टू सी पॉइंट, 2 into 4 8 अपॉन 14, 8 डिवाइडेड बाई 14 कितना आ रहा है, 0.57। कैसे आया मैं लिख देता हूँ, जरूरत नहीं थी लेकिन आई एम राइटिंग 2 into 4 अपॉन तीनों का सम 14, ये तीनों का सम 14 कितना आ रहा है, 0.57। ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू 8 into 4 32, राइट, 8 into 4 कैसे आया, 8 into 4 अपॉन 14, प्लीज डोंट राइट, जस्ट राइट द वैल्यू ओनली, 32 अपॉन 14, ये आ रहा है 2.28। इसके आगे व्हाट इज द नेक्स्ट डायग्राम, ड्रा द डायग्राम्स ओनली। ये जो ये रेजिस्टेंस है कहाँ कनेक्ट बिटवीन एन कितना है, आर ए एन 1.14। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, क्यों, बिकॉज वॉट एवर द करंट विल कम सेम करंट यहाँ आएगा, तो दीज टू आर इन सीरीज, कितना आएगा 10 प्लस 0.57 10.57। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, क्यों, वट एवर द करंट इज कमिंग हियर सेम करंट यहाँ आएगा, 6 प्लस दिस 8 8.28, 6 and 2 8.28, right? Now what is these two, they are connected between n and b, this is also connected between n and b, so these two are in parallel। तो इन पैरेलल का क्या आएगा, एक कर लो आप, दिस इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का सम, राइट। सो 10.57 इंटू 8.28 इक्वल डिवाइड बाई दोनों का सम, सम कितना आएगा 18.85, 18.85, so I am getting 4.64, this is 4.64,
64. This was 1.14. Now these two are in series. So this is B, this is A. So equivalent resistance क्या आएगा? Resistance between these two are in series. So this plus 1.14. I am getting 5.78. So answer is 5. Okay. So that is the answer. Right. Please be careful about it. Maybe some mistakes may be there, but the concept, is it clear? Okay. So I'm rubbing it first. Okay. Next problem I'm going to talk. अभी हाँ यही है. So वही उसको सॉल्व किया है मैंने, बट ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, एग्जांपल नंबर 2. सेम प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम ये 2, 10, 6, 8, ओनली 4 के बदले में यहाँ पर क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है. देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. Try to understand it. Which resistance are forming delta or star or whatever they are. Okay, suppose I am not getting it. How to do it? So नहीं समझ में आ रहा तो पहला काम क्या करना है, सब जितने भी नोड हैं सबको एक एक नाम दे दो. A, B, we have to find the resistance between A and B, C and D. इसके अलावा कोई जंक्शन है तो बोलो, नहीं है ना. तो take the resistance A here. This is the B here and C and D लेना है. Just tell me between C and D what is the resistance? 0. If resistance is 0, what is the voltage drop here? 0. If voltage drop is 0, मतलब potential of C and D will be same. So can I treat C and D as a 1 point? एक point है. अभी कितने बचे? A, B और एक ही point है ना, तो कहीं बीच में ले लेते ना ये. C and D एक ही point है. Now join. 2 ohm कहाँ connect between A and C? This is A. 2 ohm. 8 ohm कहाँ connect between A and D? A ये है and D यहीं है. Right? 6 ohm कहाँ connect है between D and B? D ये है. B, D to B कितना है? 6 ohm. 10 ohm कहाँ connect between C and B? C ये है. कितना? 10 ohm. Now just tell me these two are in parallel because these two resistances connected to point A and C same point है. तो दो parallel में हो गए. कितना आएगा? 8 into 2 16 upon 8 plus 2 10. राइट ना. 2 into 8 R1 into R2 upon R1 plus R2 क्या आएगा? 2 into 8 16 upon 2 plus 8 10. 16 upon 10 1.6. सिमिलरली ये दोनों काय में है, ये और दो ये 10 and 6 पैरेलल में. क्यों? कनेक्टेड बिटवीन C and B, C and B. सो क्या आएगा? R1 into R2 60, 10 into 6 60 upon 10 plus 6 16, 60 upon 16. Sorry, 60 divided by 16. I am getting 3.75 between B and A. No need to do any calculation, just draw more and more. Now these two are in series. Series तो R equivalent क्या आएगा? 1.6 plus 3.75 plus 1.6. I am getting 5.35. Okay, that is the answer. Clear? So जस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रा द सिंप्लीफाइड डायग्राम. उसके पहले क्या करना आपको, जब जितने भी जंक्शन है, जितने भी नोड है, सबको नाम दे दो एंड यू कैन डू इट. ओके, नेक्स्ट. सॉरी,
Example number 3. Find the equivalent resistance between A and B. Okay, between A and B. Sorry. Okay. तो पहला काम क्या करता हूं मैं, सबको एक जितने भी जंक्शन है, आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू डू इट, तो मैं एक का नाम दे देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा ये जंक्शन है सी और जंक्शन है डी। देखो ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। ओके, सो आई हैव गिवन नेम। नाउ ड्रा द सिंप्लीफाइड डायग्राम। कैसे ड्रा करना, पहले सबसे पहले किस किस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना, बिटवीन ए एंड बी। सो टेक ए हियर, B here, right? I had taken. Now I had remarked C and D also. Now you can see everywhere resistance is there. A to C, C to D, A to D, B to D, D to B, everywhere. So take C and D in such a way it should form a delta. It should form a delta. I have taken it, right? Now अभी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। बोलो 1 ओम कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन ए, दिस इज ए, सो दिस इज ए से बी के सी के बीच में, ए टू सी कितना है 1 ओम। ये थोड़ा बाहर ले लो। ओके, ए टू सी हो गया। 3 ओम कहाँ है, सॉरी दिस 1 ओम कहाँ है, बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में कितना है 1 ओम। 2 ओम कहाँ है, बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में कितना है 2 ओम। नाउ बी एंड सी, बी एंड सी 3 ओम, बी एंड सी के बीच में 3 ओम। एंड ये क्या है, बी एंड डी 1 ओम, बी एंड डी 1। So I have simplified that diagram, right? Now I want to convert. I can't solve this problem because 1 and 2 not in series, 2 and 1 is not in series, not in parallel, like that. So एक काम करता हूँ, you can see A C D forming a delta या B C D forming a delta. You can take any one delta. So मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ I'm selecting the ink actually. What is happening? Forget it. Not position. Okay, sorry. Anyway, चलो ठीक है. So this is forming a delta. So I'm going to convert delta into star like this. Okay, neutral point. So I have converted this delta into star. तो क्या आएगा, A to N, N to C, N to D. I have converted this star into delta into star. Okay, now this 2 will be as it is. Okay, so this 2 will be as it is, right? So 3 and this is 1 will be as it is, right? B, this is 3, this is 1. What is this value? ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 into 2. मैंने आपको बताया था डेल्टा में, ये आर ए सी इंटू आर ए डी अपॉन इन तीनों का सम। सो 1 into 2, 2 अपॉन 1 plus 1 plus 2, 4, 2 upon 4 is 0.5. क्लियर, आई डोंट वांट एनी कैलकुलेशन, जस्ट राइट हियर। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 into 1, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 into 1, 1 upon 1 plus 1 plus 2, 4, 1 upon 4, 0.25. ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 into 1, 2 upon 4, 0.5, right? So अभी now next how to do it, these two are in series, these two are in series. What is the next diagram, a neutral A, this is A, see this is 0.5. now between N to B क्या है, एक पाथ बन रहा है, ये कितना 3.25. these two are in series.
एक पाथ ए बन रहा है सीरीज में 1.5 1 and 0.5 series, right? I got it. Now these two combinations are in parallel. These two combinations are in parallel. तो क्या आएगा 0.5 plus this parallel combination कितना है 3.25 into 1.5 equal divided by 4.75 4.75 R1 into R2 upon R1 plus R2. I am getting 1.026 I'm getting it 1.026 कैसे आ रहा है R1 into R2 this into this upon this plus this. Clear? And now these two are in series, so I am getting 1.526. These two are in series. If you add it, you will get that is the answer. Clear? So in this way you have to do it. मैं रब कर रहा हूँ, right? Okay. One point कितना आ रहा है 1.0 plus 0.5, right? Okay. So वही है. I'm not going to example number 4. Example number 4, right? So एक ही है 6 है. Okay. 5 6. Okay. 4. This is the problem I have given. Find the equivalent resistance between X and Y. So this is X, this is Y. So this will also be X. I am remarking here, right? यहाँ मैं remark करता हूँ. This is X, this is Y. Now give the name to each junction. This is A, this is B. इसके अलावा कोई junction है तो बोलो. X, Y, A, B के बीच में. Equivalent resistance किसके बीच में निकालना है? Between X and Y. So take X here, Y here, and resistance between X and Y हो गया, right? And A और B. Take A and B here. A और B कहाँ लेंगे? Everywhere resistances are there, right? So X and Y, A और B ऐसा ले लो कि ये डेल्टा बन जाए. A, B. Now join. X to A कितना है? 20 ohm. Right? A to B कितना है? 20 ohm. X to B 75 ohm. X to A, sorry, Y to A 40, Y to A 40, Y to B 900, Y to B, right? खत्म हो गया नहीं, सॉरी 400 बचा है. किसके बीच में? X and Y. This is X and this is Y. कितना है? 400. Don't take from here. It is better to take here. कितना? 400, right? So in this way you will convert. You can draw the simplified diagram, right? Okay. चलो एक काम करो, इंक बदलता हूँ मैं. I am taking red one. Okay. So I'm without converting delta into star I can't solve. So मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको I am taking 20 75 20 in delta. I am converting into star. Sorry, what is happening? Okay, मैं I am converting delta into star. So मैं इसको I am assuming this 20 20 75 forming delta. So I am converting to star. I am getting a neutral point. So I am going to draw the simplified diagram. X2
N, N to A or N to B. I have converted this delta into star and remaining will be as it is. I am trying to select some other ink. नहीं हो रहा, ठीक है. So this is y, this is 440 as it is. B2 y क्या रहेगा as it is 900. Okay, and this will be यहाँ से कितना है 400 as it is. Just I have converted this delta into star. What is this value? ये value क्या आएगी 20 into 75, right? 20 into 75 upon 20 plus 75 plus 20, 20 plus 20, 40 plus 75, right? This. So क्या आएगा 20 into 75, 20 into 75 equal divided by 75 plus divided by 115. 115. Sorry. 20 into 75, 1500 upon 115 equal to, I am getting 13.04. This value क्या आएगी 20 into 20, 400. This value 20 into 20 upon this sum of these three divided by 115. I am getting 3.47. This value 3.47. This value कितनी आएगी सेम. ये जो वैल्यू आई थी वही आएगी 13.04, right? Now you can say these two are in series. These two are in series and both are connected between n and y. So x and y और यहाँ से 400. Okay, ये कितना 13.04. These two are in series, so 43.47. These two are in series, so 913.04 because these two are in series. Now these two are in parallel. So क्या आएगा 913.04 clear into 43.47 equal divided by sum of these two कितना 43.47 plus 913.04 close the bracket equal I am getting in दोनों के बदले में I am getting 41.49. So ऐसा आ रहा है आपका. Sorry, this is 13.04. ये वाली वैल्यू इन दोनों का कितना आ रहा है 41.49 और ये 91. This is 400. Now you can say okay. So if you do it, ये वैल्यू मैंने अगले फिगर में मैं ले लेता हूँ अगले पेज पे. ओके, मैं एक काम करता हूँ इसको रब कर दूं. आई एम फर्स्ट रबिंग इट. ओके okay, so what is the next diagram? I'm getting 13.04. These two are in parallel. इसका आया 41.49 या 5 और this is 400, right? So ये डायग्राम ये आ गए,
राइट। मैं रब कर देता हूँ इसको भी, ओके, एज इट इज। नाउ नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगा, दिस टू आर इन सीरीज, मेक इट वन, व्हाट इज द डायग्राम हियर, क्या आएगा, और ये ऐसा आएगा x y, what is the answer, this is 400, these two are in series, 13 plus 41 54, 13 plus 41 54.54, 54.54, okay, and now these two are in parallel, so क्या आएगा 400 into 54.54 upon sum of these two, 454.54, okay, so that is the answer. So कितना है 400 into 54.54 equal divided by 454.54. I am getting the answer 47.99 ohm. That is 48 ohm. That is the answer. Equivalent resistance between A and B. Is it clear? So can I rub it? Okay. One more problem I am going to talk about this. Find the equivalent resistance between A and B. Equivalent resistance between A and B. So before solving this problem, first of all I will check कि कहीं सीरीज पैरेलल है क्या, यस 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 यस, यू कैन से दिस 10 and 4 आर इन सीरीज, क्यों, यहाँ कहीं नहीं है ये, वट एवर द करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर सेम करंट विल फ्लो हियर एंड हियर, तो 10 and 4 सीरीज 14 ओम, ये 14 कहाँ कनेक्ट है, मैं पहले एक काम करता हूँ, सबको नाम दे देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, लेट अस से दिस इज सी, दिस इज डी जंक्शन है, E, दिस इज F जंक्शन है, ओके, और ये तो B है ही, सो यू कैन सी दिस 10 and 4, okay, you can say this 10 and 4, this 10 and 4 same series में है, it is not forming a delta because whatever the current is coming from here same current यहाँ आ रहा है, so these two are in series, clear, and 14 कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन B और F के बीच में, और 12 भी B और F के बीच में, so this 14 and 12 are in parallel, so मैं इसको इनको 14 and 12 को पैरेलल करेंगे तो you will get, just wait, I am getting 6.46 ohm, this 14 and 12 parallel, I am getting this value, clear, now I am getting new diagram, A, this is A, this is B, this is C, D, E, F, okay, now suppose you are not getting how to simplify, to draw the simplified diagram, मैं इस डायग्राम से मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रा करता हूँ, यहाँ पर I have to find the equivalent resistance between A and B, take the C and D in such a way, C, D and E, ऐसा ले लो E, F, because I have to remark the A, B, C, D, E, F जंक्शन है ना, तो A, B, C, D ऐसे रखे, now join A to C 9, A to D 9, C to D 6, C to E 9, D to F 3, E to F 6,
E to B 8 और F to B 6.46. Clear? So that is the simplified diagram. Now you can see here this is forming a delta 969. It is forming a delta. At the same time 6, 8 and these two deltas are there simultaneously, क्योंकि कॉमन नहीं है, राइट? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाके इंक चेंज कर लेता हूँ. Come back here. Okay, so this is forming a delta, so I am converting into star. Sorry. Okay, so I'm going to select this. Okay, so this is forming a delta 969, so I'm converting into star. इसको स्टार में कन्वर्ट करता हूँ, न्यू n पॉइंट आ जाएगा आपका n, और ये भी डेल्टा है, इसको भी स्टार में कन्वर्ट कर लेता हूँ. Let us say k. Okay, so I'm getting a to n, n to c, n to d. ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया. c to e एज इट इज, कितना 9 ओम, और d to f एज इट इज कितना है 3 ohm. Now this is again forming a delta, convert into star, so you will get e to k, f to k, clear, f to k, or k to b. Okay, now value, just do it, this calculation you have to do. बोलो क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, what is the value here, this value क्या आएगा, 9 into 9 81 upon 9 plus 9 plus 6, 9 दूनी 18 24, 9 into 9 24 हो रहा सम, 9 plus 9 plus 6 24, और ये आ रहा है 9 into 9 81 divided by 24. I am getting 3.375. Clear? ये कितना आएगा 9 and 6 वाला, 54 divided by 24. I am getting 2.24. ये वैल्यू भी सेम आएगी. क्लियर? कितना 2. ओके, ये वैल्यू बोलो 6 into 8 48 upon 6 plus 6 plus 8 12.26 plus 6 plus 8 20.46 divided by 20.46. I am getting 48 6 into 8 48 divided by 20.48. 48 divided by 20.46. I am getting 2.34. This value कितनी आएगी, this into this, 6 into 6.46 divided by 20.46, 1.89. This is 1.89. ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू, ये मीन्स 8 into 4, 8 into 6.46 equal divided by 20.46. I am getting 2.52. Okay, so I am getting it, right? Now you can observe here, you can say here these three are in series, these three are in series, and both combinations are in
parallel. So this is 3. Why it is 3? Something is wrong. Okay. This is actually, this answer is not correct. This is what? 3.375. Okay. 3.375, right? ये तीनों सीरीज में है तो क्या आएगा आंसर? आंसर इज समथिंग इज रॉन्ग. क्या है? 2.24 प्लस 9 प्लस 2.34. I am getting 13.58. This is 13.58. Not correct. 13.58. क्लियर? ये नीचे वाला कितना है? 2.24 प्लस 3 प्लस 1.89 equal to, I am getting this 7.13 or this is I am getting 2.52. correct, right? So next diagram will be like this. Now you can see here these two are in parallel. So this is 3.375. I got it. These two in parallel make it, you will get this and this. What is the value? Something is wrong here, so I am correcting it. 13.58 into 7.13 equal to plus upon divided by what? 20 divided by 20.69. Sorry, 71. 20.71. I am getting 4.67. So this is 4.67. Now you can see all these three are in series. So 4.67 plus 2.52 plus 3.375. So I am getting 10.57. Okay. So total answer is 10.57. It is 10.57 ohm. That is the answer. So in this way you can do it, right? Okay. Next. One more problem I want to talk it. Find the equivalent resistance between X and Y. Between X and Y. So first of all, before solving between X and Y, so you give the name to junction. It is already X. This is Y. This is junction A. This is C, B, Y. This is Y. Okay. Now you can see here this 1 and 5. It is 5, 1, 5 or 6 not forming a delta. Clear? Because यहाँ कोई point नहीं जा रहा, तो 1 and 5 series है. 6. This 6 and this 6 कहाँ connect है? This 6 between A and Y के बीच में, और ये कहाँ connect है? A और Y के बीच में. तो this 6 and this 6 are in parallel. Parallel ना? So equal values parallel, it is half हो जाएगा. तो whatever will be the next diagram? X A 3 6 3 3 P 3 Y. Clear ना? This 3 A और B. This is 6. Okay, ये 6 है. This 6. This 6. This is 3 3 3, and 1 and 5 all are both are in series. 6 and 6 parallel, so this will be answer is 3. Now this is the equivalent resistance, right? Now I have to find the equivalent resistance between X and Y, so you can simplify the diagram. This is X,
दिस इज y, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, एंड उसके अलावा पॉइंट कौन से, a और b है, and b. Take a and b such that it should form a delta. Now x to a 6, a to b 3, x to, oh sorry, something is wrong, sorry, this is also junction C, sorry, please correct it, I'm rubbing it, just wait, I'm taking such that, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक x, we have to find the resistance between x and y. x से कौन कौन से पॉइंट है, a और c कनेक्ट है, तो टेक a here, c here, राइट, एंड y से कौन से कनेक्ट है, a एंड b, सो a एंड b, b यहां ले लो आप, राइट, ओके, a to x, x to c, x to c कितना है, c 6, x to a 6, a to c 6, c to b 3, a to b 3, a to b 3, b to y 3, and a to y 3. Okay, so same diagram, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, right. Now you can see here this 6 6 6 forming a delta, clear. Similarly this 3 3 3 forming a delta, so I'm going to simplify it, nahi aa raha, I'm going to take it, new ink I'm selecting, okay, 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 so this 666 forming a delta I am converting into star, sorry, ink select n. Similarly this 333 forming a delta I am converting into star, okay, I am going to take a x to n to a, n to c, c to b as it is 3 ohm, okay. Now a to k, then b to k, okay, to y, okay, I'm getting it. Now see here, the 6 6 6 forming a delta, equal values, if it is forming a delta it will be 1/3, 1/3 मतलब यहाँ क्या आएगा, 2 2 2, इक्वल वैल्यू इफ इट इज फॉर्मिंग ए डेल्टा, करके देख लो आप, ये वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 6 36 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 36 अपॉन 18 2, सब जगह 2 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इफ इट इज फॉर्मिंग ए डेल्टा यू विल गेट 1 1 1, ओके, यू विल गेट 1 1 1। नाउ जंक्शन कौन कौन से, एक है आपका n और एक है k, सो x to n, this is k to y, ये कितना है, k to y 1, this is ये 2, ये क्या है 1 and 2 सीरीज 3, ये क्या है n2k 1 3 2, क्या है, तीनों सीरीज में 6, ये डायग्राम। Now these two are in parallel, क्या होगा 3 into 6 18 upon 3 plus 6 9, 18 upon 9
2, this is 1, this is 2. So ऐसा आ जाएगा. So what is R equivalent equal to 2 plus 2 plus 1, 5 ohm. Clear? So that is the way of doing it. I had taken 6 numerical based on delta star transformation. Actually, I had taken much more because your concept should be clear. And I had taken all problems conceptually. So please do it. Again, do the practice. You will get it. Right? I'm rubbing it. Okay. This is the assignment. Drive the formula for delta to star transformation and drive the formula for star to delta transformation. Please do it. Clear? Thank you. Thank you very much for listening me carefully.